Even today we are going to meditate upon the word from Genesis 28 from 10 to 19. Jacob left Beersheba and set out for Haran. When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun has set. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth with its top reaching to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. There above it stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring. I am with you, and I will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. When Jacob awoke from his sleep, he thought, surely the Lord is in this place. I was not aware of it. He was afraid and said, how awesome is this place! This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. Early the next morning, Jacob took the stone he had placed under his head and set it up as a pillar and poured oil on top of it. He called that place Bethel, though the city used to be called Luz. आज भी हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे जो पाया जाता है उत्पत्ति अध्याय 28 उसके वचन 10 से 19 तक। सो याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भयभीत होकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। This is a beautiful story, isn't it? यह कितनी ही सुंदर एक बात है ना? This is a real story. यह एक वास्तविक घटना है। Jacob saw a dream. याकूब ने एक स्वप्न देखा। He saw a ladder being put on the earth. उसने देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी हुई है। The angels of God were ascending and descending upon it. और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं। More than everything, the Lord stood above it. और सारी बातों से बढ़कर यहोवा परमेश्वर खुद वहाँ पर खड़े हुए हैं। What a beautiful thing it is to see God himself. स्वयं परमेश्वर का दर्शन पाना तो एक बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। The Lord did not appear to a royal king. परमेश्वर वहाँ किसी राजसी राजा के समक्ष प्रकट नहीं हुए, but then he appeared to a lonely man who was in a wilderness. लेकिन परमेश्वर वहाँ एक ऐसे व्यक्ति के समक्ष प्रकट हुए जो बियाबान में अकेला है। Jacob had a long journey. याकूब को एक लंबी यात्रा करनी थी।
he left his native place, Beersheba, and he was going to Haran. वह अपने जन्म स्थान बेरशेबा को छोड़कर हारान की ओर जा रहा था। Beersheba was the native place of his grandfather and grandmother, Abraham and Sarah. बेरशेबा तो उसके दादा दादी अब्राहम और सारा का जन्म स्थान था। He was not a person who travels. वह यात्रा करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। He wanted to live with his mother in his tent. वह अपनी माँ के साथ अपने तंबू में रहना पसंद करता। But then, as he stole his brother's birthright, he was so fearful and left his home. लेकिन फिर जब उसने अपने भाई का जन्म सिद्ध अधिकार छीन लिया तो वह इतना भयभीत हो गया कि उसने अपना घर छोड़ दिया। He felt a heaviness in his heart, उसके दिल में एक भारीपन महसूस हुआ and his own consciousness pricked him. और उसकी अंतरात्मा उसे कचोटने लगी And he was so guilty. और वह बहुत दोषी महसूस कर रहा था। Jacob was running away from his home. याकूब अपने घर से भाग रहा था। He felt emptiness in his heart. उसे अपने हृदय में एक प्रकार का खालीपन महसूस हो रहा In था। Genesis 32:10 he said, उत्पत्ति 32:10 में वो कहता है, I had only my staff when I crossed this Jordan. जब मैंने इस यरदन नदी को पार किया तब मेरे पास केवल मेरी लाठी थी। He had nothing else but only a staff in his hand. उसके हाथ में लाठी के सिवा और कुछ नहीं था। But this extraordinary dream changed his life. लेकिन इस असाधारण सपने ने उसकी जिंदगी बदल दी। Firstly, he says, This is the gate of heaven. सबसे पहले वह कहता है यह तो स्वर्ग का द्वार है। As in Genesis 28:17. उत्पत्ति 28:17 में जैसा लिखा है This is the gate of heaven. कि यह तो स्वर्ग का द्वार है। Through this dream, God drew Jacob closer to him. इस स्वप्न के माध्यम से परमेश्वर ने याकूब को अपने निकट खींच लिया। Jacob literally saw a ladder being put on the earth. याकूब ने सचमुच पृथ्वी पर एक सीढ़ी को खड़े हुए देखा। Above the ladder, the Lord was standing and he was saying, Jacob, I am with you. सीढ़ी के ऊपर स्वयं परमेश्वर यहोवा खड़े हुए थे और उन्होंने कहा याकूब मैं तेरे साथ हूँ। He would have felt the closeness of God. याकूब ने परमेश्वर के निकटता का अनुभव किया होगा। That is why he said, This is the gate of heaven. इसलिए उसने कहा यह तो स्वर्ग का द्वार है। God connected him with heaven. परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से जोड़ दिया। The gate connects the earth and heaven. यह द्वार पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ता है। What is this gate? तो फिर यह द्वार क्या है? This gate is nothing else but Jesus. यह द्वार और कुछ नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु हैं। Bible scholars say God mentioned here is Jesus himself. बाइबल के विद्वान कहते हैं कि यहाँ जिस प्रकार का जिक्र है वह स्वयं यीशु के बारे में बता रहा है। After much research, they say Jacob literally saw Jesus. एक गहन शोध के बाद में वे कहते हैं कि याकूब ने सचमुच यीशु को देखा था। In John 10:9, the Bible says, यूहन्ना 10:9 में बाइबल कहती है, Jesus says, यीशु कहते हैं वहाँ पर, I am the gate. मैं ही द्वार हूँ। Whoever enters through me will be saved. जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा। Whoever enters through me will be saved. जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा। Without Jesus, we are nothing. यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। Jesus is the way, the truth, and the life. यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। Jesus is the gate. यीशु ही वह द्वार है। Come near to God, and He will come near to you. परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे भी निकट आएगा। More closer we get to Jesus, हम यीशु के जितने करीब पहुंचेंगे
He will show himself to you. तो वह स्वयं को आपके सामने प्रकट करेंगे। Here Jacob would have cried alone in the wilderness. यहाँ याकूब उस बियाबान में रो रहा होगा। I have left everything. मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। I am far away from my parents. मैं अपने माता पिता से बहुत दूर हूँ। I have nothing to eat. मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। I am tired. मैं थका हुआ हूँ। Lord, are you there with me? हे प्रभु, क्या आप मेरे साथ हैं? He would have cried, are you there with me, Lord? वह शायद रोते हुए बोला होगा, हे प्रभु, क्या आप मेरे साथ हैं? He came closer to God. वह परमेश्वर के और करीब आया And so God also visited him. और इस तरह परमेश्वर ने भी उससे मुलाकात की। Many a times God puts us in that situation. कई बार परमेश्वर हमें ऐसी स्थिति में डालते हैं। We have everything, we will not look up to God. जब हमारे पास सब कुछ होता तो हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते हैं। When I got married, my mother said, you will be in Brother Dinakaran's home with everything in your life. जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने कहा, तुम खुश रहोगी, तुम भाई दिनाकरण के घर में बहुत खुश रहोगी, तुम्हारे जीवन में सब कुछ रहेगा। She said, you will be so happy in their house. उन्होंने कहा कि तुम उनके घर में बहुत खुश रहोगी। All the time they will be praying. वे हर समय प्रार्थना करेंगे। So you will lack nothing in your life. इसलिए तुम्हारे जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। And I also believed her word and entered into their home. और मैंने भी उनकी बात पर विश्वास किया और उनके घर में प्रवेश किया। Then, just to bring me closer to God, the Lord took away my mother who prayed for me. परमेश्वर ने मुझे अपने निकट लाने हेतु मुझसे मेरी माँ को दूर कर दिया, जो मेरे लिए प्रार्थना किया करती थी। My brother died. मेरे भाई की मृत्यु हो गई। Then my father died. फिर मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई। I was not happy at all in their home. मैं उनके घर में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। I was shedding tears thinking about my loved one. मैं अपने प्रियजनों को याद करके रोया करती। Only after that I started to seek God. उसके बाद ही फिर मैंने परमेश्वर को खोजना शुरू किया। I wanted God to be more closer to me. मैं चाहती थी कि परमेश्वर मेरे और निकट रहे। I cried out to God, Lord, I want to see you. मैंने परमेश्वर को पुकारा और कहा कि परमेश्वर, मैं आपको देखना चाहती हूँ। I want to speak to you, Lord. प्रभु, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। And I asked God, Lord, you must be with me all the time. और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु, आप हर समय मेरे साथ रहिए। If you come closer to God, the Lord will come closer to you. यदि आप परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा। Jesus is our gate. यीशु हमारा द्वार है, He comes down the ladder. जो उस सीढ़ी के रूप में नीचे उतरा। Jesus himself built the ladder between heaven and earth. यीशु ने स्वयं को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की वह सीढ़ी बना दिया। How did he build it? उन्होंने इसे कैसे बनाया? Through his own body and blood. अपने स्वयं के शरीर और लहू के द्वारा, so that he can give us the access. ताकि वे हमें उस तक पहुंच प्रदान कर सके। He is the gate. वही वह द्वार है। Dear friends, प्रिय मित्रों, when I cried out to God, जब मैंने परमेश्वर को पुकारा the Lord filled me with his spirit. तो परमेश्वर ने मुझे अपनी आत्मा से भर दिया And he started to use me in the ministry. और फिर उन्होंने मुझे सेवकाई के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। Again in the year 2008, लेकिन फिर सन 2008 I में lost my father, brother D.J.S. Dinakaran. मैंने अपने पिता भाई DGS दिनाकरण को खो दिया। My faith was shaken. मेरा विश्वास डगमगा चुका था। I said, Lord,
My father was my everything. मैंने कहा, हे परमेश्वर, मेरे पिता ही मेरे लिए सब कुछ थे। Now you have taken him away from me. अब आपने उन्हें मुझसे दूर कर दिया है। What am I going to do? अब मैं क्या करूंगी? I was thoroughly broken. मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। My father passed away in the month of February. मेरे पिता का देहांत फरवरी महीने में हुआ, But on the month of January 24th, the Lord appeared. लेकिन 24 जनवरी को परमेश्वर मेरे सामने प्रकट हुए। He was standing right before me, वे मेरे ठीक सामने खड़े थे and he was looking at me with so much of love in his और heart. वो मुझे बहुत प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे। He was smiling and smiling at me. वो मुस्कुरा रहे थे, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। That gave me the courage to go forward. इससे मुझे आगे बढ़ने का हौसला मिला And that gave me the courage to do the ministry again. और इससे मुझे दोबारा सेवकाई करने का साहस प्राप्त हुआ। And I said to the Lord, Lord, I am here. I will stand in the gap, Lord. और मैंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मैं उस खाली स्थान में खड़े रहूंगी। Likewise, cry out to God. इसी प्रकार परमेश्वर को पुकारें। No human in this world can help you, इस संसार में कोई भी मनुष्य आपकी सहायता नहीं कर सकता, but only the Lord can do everything for you, dear friend. केवल परमेश्वर ही आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, Lord took away all my dependence just to cling on to Jesus. परमेश्वर पिता ने मेरी अन्य सारी निर्भरताओं को दूर कर दिया ताकि मैं केवल प्रभु यीशु मसीह पर ही निर्भर रह सकूं। The visitation of Jesus made me go closer to God. यीशु मुझे परमेश्वर के और करीब और निकटता में लेकर आ गए। The Lord Jesus said to Nathanael like this, प्रभु यीशु मसीह ने नथानियल को इस प्रकार से कहा, as in John 1:51, truly I tell you, you will see open heaven and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। You will see open heaven. तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। You will see angels ascending and descending from heaven. तुम स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और नीचे उतरते हुए देखोगे। After my dad passed away, the Lord showed me angels coming to me. मेरे पिता के देहांत के बाद परमेश्वर ने मुझे स्वर्गदूतों को मेरे पास आते हुए दिखाया And those dreams brought me more closer to God. और ये स्वप्न मुझे परमेश्वर के और करीब लेकर आ गए। You will also see God. आप भी परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। Today this grace will come upon you, dear friend. मेरे प्रिय मित्रों, आज यह अनुग्रह आप पर आ रहा है। Jesus is the gate. यीशु ही वह द्वार है। He is the access for us to communicate with Him. वही हमारे लिए उससे संवाद करने का एक माध्यम है। In Romans 5:2, रोमियो अध्याय 5 वचन 2 में, through Jesus we have gained access by faith. यीशु के द्वारा विश्वास से उस तक हमारी पहुंच भी हुई है। The dream that was given to Jacob was so intimate and personal. याकूब को जो स्वप्न दिखाया गया वह इतना अधिक घनिष्ठ और व्यक्तिगत था। He not only see one dream, उसने केवल एक स्वप्न ही नहीं देखा, after that he saw many dreams. बल्कि उसके बाद उसने कई स्वप्न देखे। He saw battalions of angels standing with him. उसने स्वर्गदूतों की टुकड़ियों को अपने साथ खड़े हुए देखा। Every time he went through loneliness, जब भी वो अकेलेपन से होकर गुजरा, the Lord spoke to him. परमेश्वर उससे बात किया करते।
Our Lord is so intimate. हमारा परमेश्वर इतने करीब रहता, He's a personal God. वह तो व्यक्तिगत रहने वाला परमेश्वर He's है, not far away from us. वह तो हमसे दूर नहीं है। That's why the Lord has sent Jesus to us so that we can touch Him and reach out to Him. इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे पास भेजा ताकि हम उसे स्पर्श कर सकें और उस तक हम पहुंच सकें। May the Lord open your eyes also. परमेश्वर आपकी भी आंखों को ऐसा खोल दे। My father used to describe so many things about heaven. मेरे पिता स्वर्ग के बारे में बहुत सारी बातों की व्याख्या किया करते थे। He will say, I used to talk to God and I used to see the throne of God. वे कहते थे कि मैं परमेश्वर से बात किया करता और परमेश्वर के सिंहासन को मैंने देखा। My father was a man of prayer. मेरे पिता तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। Every time I would enter his room, I would see him kneeling down and praying. जब भी मैं उनके कमरे में जाया करती, मैं उन्हें घुटने के बल बैठकर प्रार्थना करते हुए पाती। He saw heaven. उन्होंने स्वर्ग को देखा, He saw the angels. उन्होंने स्वर्गदूतों को भी देखा, Saw the saints of God in heaven. उन्होंने स्वर्ग में परमेश्वर के जनों को देखा। Whenever I would go and sit with him, I would asking about heaven. जब भी मैं उनके साथ जाकर बैठा करती तो मैं स्वर्ग के बारे में उनसे पूछा करती थी। I would be asking him about heaven. मैं उनसे स्वर्ग के बारे में पूछा करती। It would be a very joyous moment. यह तो बहुत ही आनंदमय एक समय हुआ करता। God is not far away from us, dear friend. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। He will give you dreams and vision. वह आपको स्वप्न और दर्शन देंगे। The Lord has promised us to do that. प्रभु ने हमसे वायदा किया है कि वह ऐसा करेंगे। In the last days, young men will see vision, अंतिम दिनों में तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे and old people will see dreams. और तुम्हारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। Yes, dear friends, it is possible. हाँ मेरे दोस्तों, यह संभव है। Every time I would sit with my granddaughter Katie and to read the Bible, जब भी मैं अपनी पोती कैटी के साथ बैठकर बाइबिल पढ़ती, I would tell her before going to bed, pray to God and ask God to appear before you. सोने से पहले मैं उससे कहती, परमेश्वर से प्रार्थना करो और उनसे विनती करो कि वे तुम्हारे सामने प्रकट हों। Ask God, Lord, I must see Jesus. परमेश्वर से कहो, हे प्रभु, मुझे यीशु को देखना है। And she will ask, how should I ask? और फिर वह मुझसे पूछती कि मैं यह कैसे कहूँ। And I would be teaching her about the Bible. और फिर मैं उसे बाइबिल के बारे में सिखाती। Dear friends, before going to bed, let us with prayer ask God, Lord, appear before me. प्रिय दोस्तों, सोने से पहले आइए प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर से विनती करें कि हे प्रभु, मेरे समक्ष आप प्रकट होइए। Give me a word in my dream even. मेरे स्वप्न में भी आप मुझे वचन दीजिए। Many times the Lord would give me Bible verses in my dream. कई बार परमेश्वर मुझे मेरे स्वप्न में ही बाइबिल के कई वचनों को दिखाते हैं। I would have read, but then I would not have read intently. मैं इसे पढ़ी तो होती, पर ध्यान से नहीं पढ़ी होती। But then he will be mentioning the chapter and the verses even. लेकिन फिर वो अध्याय और उन वचनों का जिक्र भी करते। I will open the Bible and read it. मैं फिर बाइबिल खोलकर उसे पढ़ती। And that would encourage me a lot. इससे मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता। The Lord is able to speak to us every day, dear friend. प्रिय मित्रों, परमेश्वर प्रतिदिन हमसे बात करने में सक्षम है। Ask for the heavenly manna. परमेश्वर से स्वर्गीय मन्ना मांगें। Get closer to God. परमेश्वर के निकट आ जाएं। The help of human is waste. मनुष्य की सहायता तो व्यर्थ है। It's a waste to believe in the breath of man. मनुष्य की शक्ति पर विश्वास करना व्यर्थ है।
God is our help, our refuge, our very present help in times of trouble. परमेश्वर हमारा सहायक है, हमारा दृढ़ गढ़ है और संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला सहायक है। All right. Secondly, Jacob says, surely the Lord is in this place and I was not aware of it. दूसरी बात जो याकूब कहता है कि निश्चय ही परमेश्वर इस स्थान पर उपस्थित है और मैं इसे जानता न था। In Genesis 28:16, he says that उत्पत्ति 28 वचन 16 में वो ऐसा कहता है। Jacob was in the middle of nowhere. याकूब बिल्कुल सुनसान जगह पर था। He was so scared. वह बहुत भयभीत था। He was not a traveler too. वह घूमने फिरने का शौकीन व्यक्ति नहीं था। He loved to be with his mother. उसे अपनी माँ के साथ रहना अच्छा लगता था। But now he was in an unknown place. लेकिन अब वह एक अनजान जगह पर था। But God's love is unconditional, dear friend. लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का प्रेम तो निस्वार्थ प्रेम है। God showed himself to him. परमेश्वर ने स्वयं को उस पर प्रकट किया And that's why he said, surely the Lord is in this place. और इसलिए उसने कहा निश्चय ही परमेश्वर इस स्थान पर उपस्थित है I was not aware of it. और मैं तो इसे जानता ना था। After this dream, Jacob knew that God was so concerned about his future. इस स्वप्न के बाद याकूब इस बात को जान पाया कि परमेश्वर याकूब के भविष्य की परवाह करते थे। God was so concerned about his well-being. परमेश्वर याकूब की भलाई का ख्याल किया करते। In Genesis 28:15, the Lord spoke to him so clearly. उत्पत्ति 28:15 में परमेश्वर ने उससे स्पष्ट रूप से कहा, I am with you and I will watch over you. मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। I am with you wherever you go. तू जहाँ कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा And I will bring you back to this land. और मैं तुझे वापस इस भूमि पर लौटा ले आऊंगा। I will not leave you until I have done what I have promised to you. और जिस बात की प्रतिज्ञा मैंने तुझसे की है जब तक मैं उसे पूरा ना कर लूं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। He said, I am with you. उसने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, I will keep you. मैं तुझे संभाले रहूंगा And I will be with you when you return also. और जब तू लौट आए तब भी मैं तेरे साथ रहूंगा। I will not leave you. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, And I will keep my promise. मैं अपना वायदा निभाऊंगा। Look at this verse. Many times the Lord said to him, I will do it for इस you. वचन को देखिए, परमेश्वर ने कई बार उससे कहा मैं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं यह करूंगा। That's why he said, surely the Lord is in this place. इसलिए उसने कहा निश्चय ही परमेश्वर इस स्थान पर मौजूद है। The Lord knew his future also. परमेश्वर तो उसका भविष्य भी जानते थे। He knew how he is going to suffer with his father-in-law. उन्हें पता था कि उसे अपने ससुर के साथ कितना कष्ट सहना पड़ेगा। He knew he would be working hard to earn his wife's love. परमेश्वर को पता था कि याकूब को अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। That's why he said, I will be with you, my son. इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा मेरे बेटे मैं तेरे साथ रहूंगा, I will watch over you. मैं तेरी रक्षा करूंगा। This is the God we have with us, dear friend. प्रिय मित्रों, यही वह परमेश्वर है जो हमारे साथ है। Many times when we go through trouble, we may be thinking, is God with me? कभी कभी जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है। God is watching over your life. परमेश्वर आपके जीवन पर नजर रखे हुए हैं। The Lord is watching your behavior. परमेश्वर आपके व्यवहार को भी देख रहे हैं। How you are behaving when you are going through trouble. जब आप मुसीबतों में से होकर गुजरते हैं तब आपका व्यवहार कैसा होता है। Are you mad at the people who do wrong to you? क्या आप उन लोगों पर गुस्सा करते हैं जो आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, Or are you kind with them? या आप उनके साथ उनके प्रति दयालु होते हैं।
Jesus says, love your enemies. यीशु ने कहा अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। Why did he say that? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? When people give us trouble, we will get wild and curse them even. जब लोग हमें परेशान करते हैं तो हम भी अपना आपा खो बैठते हैं और हम उन पर चिल्लाते हैं और उन्हें कोसते हैं। But then God says, love your enemy. लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। God is watching over you. परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं। Look at Jacob, how he behaved with his father-in-law. याकूब को देखिए, उसने अपने ससुर के साथ कैसा व्यवहार किया। He gave him lot of trouble. उसके ससुर ने उसे बहुत परेशान किया। Even at those times, he prayed to God and asked God how he should behave. लेकिन उन दिनों में भी उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से पूछा कि उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। The Lord gave him new ideas. परमेश्वर ने उसे नए विचार, नए तरीके बताए How he should rear the sheep. कि उसे भेड़ों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए। And when Jacob obeyed that, और जब याकूब ने ऐसा किया the Lord multiplied the sheep. तो परमेश्वर ने उसके भेड़ों की संख्या को बढ़ाया। And the Lord made him prosper. परमेश्वर ने उसे समृद्ध किया। He became so prosperous more than his father-in-law. वह तो अपने ससुर से भी कहीं ज्यादा समृद्ध हो गया। As the Lord promised to him to be with him. जैसा कि परमेश्वर ने उसे वादा किया था कि वह उसके साथ रहेंगे। As he said, wherever you go, I will be with you. जैसा कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। The Lord fulfilled his promise with Jacob. परमेश्वर ने याकूब से किया अपना वादा पूरा किया। Jacob would have said, surely the Lord is in this place even in times of my trouble. याकूब ने कहा होगा, निश्चय ही परमेश्वर इस स्थान पर मेरे संकट के समय में भी मेरे साथ हैं। Yes, dear friends. जी हाँ मेरे प्रिय मित्र, Never concerned about your belonging. अपनी सामग्री, अपनी संपत्ति का मोह ना करें। God is there for you. परमेश्वर हमेशा आपके साथ वहाँ हैं। He will go with you wherever you go. जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वहाँ परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। Finally, the Lord will help you to enjoy the finest of wheat. अंत में परमेश्वर आपको उत्तम गेहूं का आनंद लेने में सहायता करेंगे। Surely, Jacob said, the Lord is in this place. याकूब ने कहा, निश्चय ही परमेश्वर इस स्थान पर उपस्थित है। It was a mess in his life. उसकी जिंदगी तो पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। Everything was a mess. उसकी जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ था। It was a total chaos. पूरी तरह से अराजकता फैली हुई थी। But then finally the Lord brought him back from Laban's place to his own place with double portion of blessing. लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसे लाबान के घर से दुगनी आशीषों के साथ उसके अपने स्थान पर वापस लौटा ले आए। The Lord did everything he promised to him. परमेश्वर ने जिस बात का वायदा उससे किया था वो सारी बातों को उन्होंने किया। When you go through sufferings, the Lord will give you the word of assurance. जब आप कष्टों से गुजरते हैं तो परमेश्वर आपको आश्वासन के वचन देते हैं। Our Lord Jesus says, I am the bread of life. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। Yes, He is life. हाँ, वही तो जीवन है। His word brings us life उसका वचन उसके जीवन को लाता है and makes us live, dear friend. और वह हमें जीवन देता है मेरे दोस्तों। We will not hunger or thirst हमें भूख या प्यास नहीं लगेगी as long as Jesus is with us. जब तक यीशु हमारे साथ है। We will enjoy the best things which He has. हम उसकी सर्वोत्तम चीजों का आनंद उठाएंगे। That's what David says in Psalm 34:8. दाऊद भजन संहिता 34:8 में यही तो कहता है, Taste and see that the Lord is good.
परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। Blessed is the one who takes refuge in him. धन्य है वह जो उसकी शरण लेता है। Jacob tasted God that he is good. याकूब ने परमेश्वर की भलाई का अनुभव किया। We have tasted God that he is good. हमने भी परमेश्वर की भलाई का अनुभव किया है, उसकी भलाई का स्वाद हमने चखा You will है। also taste God that he is good. आप भी परमेश्वर की भलाई का स्वाद चखेंगे कि वह भला है। Even in times of trouble, tell God, Lord, it is good for me that I have been afflicted. संकट के समय भी परमेश्वर से कहो कि हे प्रभु, मेरे लिए यह अच्छा हुआ कि मैंने इस कष्ट को सहा, So that I can learn your statutes. ताकि मैं आपके नियमों को सीख सकूं। Only when we are alone, God will speak to us. परमेश्वर हमसे तभी बात करते हैं जब हम अकेले होते हैं। God puts us in that position to look to Him. परमेश्वर हमें ऐसी स्थिति में कई बार डालते हैं कि हम उसकी ओर ही देखें। Those times we will literally experience this verse that is from Isaiah 65:24. उन समयों में हम यशाया 62:24 के इस वचन का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे। Before they call, I will answer. उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, While they are still speaking, I will hear. और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। God provides. परमेश्वर सारी बातों की पूर्ति करते हैं। God is so concerned about your life. परमेश्वर आपके जीवन की बहुत परवाह करते हैं। Cry out to God. परमेश्वर को पुकारिए। Ask God in times of your trouble. मुसीबत के समय परमेश्वर को पुकारिए। He is your very present help in times of trouble. वह तो संकट के घड़ी में अति सहजता से मिलने वाली मदद है। And thirdly, Jacob said, और तीसरी बात जो याकूब ने कही, How awesome is this place? यह स्थान कितना अद्भुत है। This is none other than the house of God. यह तो और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर का भवन है। House of God is a place where God dwells. परमेश्वर का भवन जहाँ परमेश्वर निवास करते हैं, Where angels of God are there. जहाँ परमेश्वर के स्वर्गदूत उपस्थित रहते। We can feel divine presence in worship places. हम आराधना के ऐसे जगहों पर परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। When Jacob's father-in-law ill-treated him, जब याकूब के ससुर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, he said to his father-in-law like this, तो उसने अपने ससुर से इस प्रकार कहा, as in Genesis 31:42. जैसे कि उत्पत्ति 31:42 में लिखा है, मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूचे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डपटा। He says, the fear of Isaac. वो कहता जिसका भय इसहाक भी मानता है। His grandfather loved the Lord. उसके दादा भी परमेश्वर से प्रेम किया करते। His father feared the Lord. उसके पिता भी परमेश्वर का भय माना करते। That's why he said, इसलिए वो कहता their God is on my side. कि उनका वो परमेश्वर मेरी ओर है, मेरे साथ है। God saw my affliction परमेश्वर ने मेरी पीड़ा को देखा है and the labor of my hands. और उसने मेरे हाथों के परिश्रम को भी देखा है। And that's why the Lord rebuked you not to say any word against me. और इसलिए परमेश्वर ने तुझे डांटा कि तू मेरे विरोध में एक भी शब्द ना कह सके। He was so sure that his father's God was with him. उसे पूरा विश्वास था कि उसके पिता का परमेश्वर उसके साथ है। You must also declare that, saying, my father's God is with me. आपको भी यह कहना चाहिए कि मेरे पिता का परमेश्वर मेरे साथ है।
Yes, dear friends, when we worship God as a family, the Lord will continue to be with us from generation to generation. हाँ मेरे दोस्तों, जब हम परिवार के रूप में परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ बने रहते हैं। The Lord will pour out His Spirit upon our children. परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे संतानों पर उंडेल देंगे। He will pour out His blessings upon our children's children. वह हमारे बच्चों के बच्चों पर भी अपनी आशीषों को उंडेल देंगे। What a beautiful blessing it is, isn't it? यह कितनी सुंदर आशीषें हैं, है ना? That's why He said, "How awesome is this place!" इसलिए उसने कहा यह स्थान कितना ही अद्भुत है। This is none other than the house of God. यह तो और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर का भवन है। When we worship God as a family, our home also will be like that. जब हम परिवार के रूप में परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमारा घर भी ऐसा ही हो जाता है। Our house will be like a heaven. हमारा घर स्वर्ग के समान होगा। Our father will be prophesying. हमारे पिता भविष्यवाणी करेंगे। Our grandfather will be prophesying. हमारे दादा भविष्यवाणी करेंगे। Our parents will be prophesying. हमारे माता पिता भविष्यवाणी करेंगे। And the grace will fall upon the children also. और यही अनुग्रह हमारी संतानों पर भी होगा। How awesome will be your home. आपका घर कितना अद्भुत घर हो जाएगा। How awesome will be your worship place. आपका आराधना का स्थल कितना अद्भुत होगा। We have more than 100 prayer tours in India. भारत में हमारे लगभग 100 से अधिक प्रार्थना भवन हैं। Wherever people go, they say we feel the presence of God there. लोग जहाँ भी जाते हैं वे कहते हैं कि वहाँ हमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। This is because of the sacrifice our father made. ऐसा हमारे पिता के बलिदान के कारण हुआ। Our father used to tremble before God. हमारे पिता परमेश्वर के सामने कांपते थे। He will not take anything for granted. वह किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया करते थे। If God would say anything to him, he will immediately obey. अगर परमेश्वर उनसे कुछ कहते तो वह तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया करते। Today my husband is following that. आज मेरे पति भी यही कर रहे हैं। Our children are following that. मेरे बच्चे भी उसी राह पर चल रहे हैं। That's why God is with us even today. इसलिए आज भी परमेश्वर हमारे साथ हैं। In Jerusalem prayer tower, यरूशलेम के प्रार्थना भवन में as we dedicate the prayer tower on the first anniversary, प्रार्थना भवन की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जैसे हमने प्रार्थना भवन का अर्पण किया, we were there for 1 week. एक सप्ताह तक हम वहां रहे। We were looking through the window and praying for the world. हम खिड़की से बाहर देख रहे थे और दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहे थे। That place was filled with our prayer intercessors. वह स्थान तो प्रार्थना की मध्यस्थी करने वालों से भरा हुआ था। Pastors and bishops from all over the world visited the prayer tower. दुनिया भर से पासबान और बिशप प्रार्थना भवन में आते। There was prayer, prayer, prayer all the time. वहाँ हर समय सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना ही हुआ करती। We have even built staying facilities there in the prayer tower. हमने प्रार्थना भवन में ठहरने की व्यवस्था भी करवाई है। Our prayer tours from all over the world stay there and pray there for 24 hours. दुनिया भर से आने वाले हमारे प्रार्थना दल वहाँ रुका करते हैं और 24 घंटे प्रार्थना किया करते हैं। The prayer tour in Jerusalem is a gift given by God. यरूशलेम का प्रार्थना भवन तो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। When we were there, 3 college students were walking by the road. जब हम वहाँ थे तो 3 कॉलेज के छात्र सड़क पर चल रहे थे। When they got into the Jerusalem prayer tower, जब वे यरूशलेम के प्रार्थना भवन में पहुँचे,
When my husband met them, he asked them, जब मेरे पति उनसे मिले तो उन्होंने उनसे पूछा, "Who brought you people here?" आपको यहाँ कौन लेकर आया है? They said, "Somebody pulled us into this prayer tower." उन्होंने कहा कि किसी ने हमें इस प्रार्थना भवन में खींच लिया। They were crying and praying to the Lord. वे आंसू बहाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। And they said, "We felt the awesome presence of God here." और उन्होंने कहा कि हमें यहाँ परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति का अनुभव हुआ। They literally said, "How awesome is this place?" उन्होंने सचमुच कहा, यह स्थान कितना अद्भुत है। This is none other than the house of God. यह तो और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर का भवन है। Likewise, the Lord is bringing people from all over the world to the prayer tower. इसी प्रकार परमेश्वर विश्व भर से लोगों को प्रार्थना भवन में ला रहे हैं। The Chinese, Koreans, Africans, Arabians, from Arabia and from all over the world, people are coming in. चीनी, कोरियाई, अफ्रीकी, अरब और दुनिया भर से लोग वहां आ रहे हैं। The Lord is doing something awesome. परमेश्वर कुछ अद्भुत कर रहे हैं। Many a times we don't realize that, कई बार हमें इसका एहसास नहीं होता, but it is the work of God. लेकिन यह तो परमेश्वर का कार्य है। Through that prayer tower, the Lord is blessing the entire world. उस प्रार्थना भवन के माध्यम से परमेश्वर पूरे विश्व को आशीष दे रहे हैं। Sitting here in India, we are blessing the world. भारत में बैठे बैठे हम दुनिया को आशीर्वाद दे रहे हैं। What an awesome God we serve, isn't it? हम कितने महान परमेश्वर की सेवा करते हैं, है ना? Yes, dear friends. हाँ प्रिय मित्रों, The Lord is in His house. परमेश्वर अपने भवन में है। As you have come here to look up to God, आप यहाँ परमेश्वर की ओर निहारने आए हैं। He is a silent listener listening to your prayers. वह मौन रहकर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। Never take things for granted. कभी भी किसी बात को हल्के में ना लें। Truly God is in this place. सचमुच परमेश्वर इस स्थान पर विद्यमान हैं। Truly God will answer your prayer. निश्चित रूप से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। How awesome is this place? यह स्थान कितना अद्भुत है। This is none other than the house of God, यह और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर का भवन है, where all people of the nations of the world can come in and look up to God. जहाँ दुनिया के सभी देशों से लोग आकर परमेश्वर की ओर देख सकें। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। This will happen in the future. यह भविष्य में होगा। The Lord will bring people from all over the world to pray here. परमेश्वर दुनिया भर से लोगों को यहाँ प्रार्थना करने के लिए लेकर आएंगे। You are a blessed people. आप धन्य लोग हैं। May the Lord increase your territory. प्रभु आपकी सीमाओं को बढ़ाए। May the Lord speak to you. परमेश्वर आपसे बात करे। May the Lord give you visions. परमेश्वर आपको दर्शन दिखाए। May the Lord give you dreams. परमेश्वर आपको स्वप्न दिखाए। More than everything, may the Lord give you a word for every day. सबसे बढ़कर परमेश्वर आपको हर दिन के लिए एक वचन दे। Do not be concerned about anything, dear friend. प्रिय दोस्तों, किसी भी बात की चिंता मत करिए। Jacob went alone, याकूब अकेला गया था, but he came back with 2 portions of blessing. लेकिन वह दुगनी आशीषों के साथ लौटा। Instead of your shame, you will have double portion of blessing. आपकी शर्मिंदगी के बदले आपको दुगनी आशीषें मिलेंगी। People may say you are a useless person, लोग शायद कहते होंगे कि तुम तो एक अनुपयोगी व्यक्ति हो, but in the kingdom of God, it's just the opposite.
लेकिन परमेश्वर के राज्य में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। God wants you, the useless person, you to be used. आप जो बेकार और अनुपयोगी व्यक्ति हैं, परमेश्वर अपने राज्य के लिए आपका उपयोग करना चाहते हैं। I was a very timid, shy girl, मैं बहुत डरपोक और संकोची लड़की थी। a very weak person. मैं बहुत ही कमजोर व्यक्ति थी। I won't even speak to the visitors who would be coming to my house. मैं अपने घर आने वाले मेहमानों से बात तक नहीं करती थी। But God has taken this timid girl to go around the world to bless the people. लेकिन परमेश्वर ने इस डरपोक लड़की को दुनिया भर में लोगों को आशीर्वाद दिलाने हेतु चुन लिया। Hallelujah. हालेलुया। Today I am blessed in double measure. आज मैं दुगने रूप से आशीषित हूँ। May the Lord bless you too. परमेश्वर आपको भी यह आशीष दे। Shall we all look up to God? आइए क्या हम परमेश्वर की ओर देखें। Thank you, Lord, for speaking to us. हे प्रभु, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। Lord, even now let your blessings come upon them, Lord. प्रभु, अभी भी आपकी आशीषें इनके ऊपर उतर आए। You are the God of Jacob. प्रभु जी, आप तो याकूब के परमेश्वर हैं। You are the God of Isaac. आप तो इसहाक के परमेश्वर हैं। You are the God of Abraham. प्रभु जी, आप तो अब्राहम के परमेश्वर हैं। You are the God of your people also, Lord. आप अपने लोगों के भी परमेश्वर हैं प्रभु। Lord, the grace that was upon Jacob, let it come upon your children also. प्रभु जी, जो कृपा याकूब पर थी, वही अनुग्रह आपके बच्चों पर भी हो। Lord, let them find joy in your presence. प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में ये आनंद पाएं। Let them feast in the inheritance of Jacob, O God. हे प्रभु, उन्हें याकूब के विरासत का उत्सव मनाने दे। Make them to ride in the heights of the land. उन्हें देश की ऊंचाइयों पर विचरण करने दीजिए। I put this blessing upon your children, Lord. हे प्रभु, आपकी संतानों पर हम इन आशीषों की घोषणा करते हैं। You be their inheritance, O God. प्रभु जी, आप ही इनकी विरासत बन जाइए। Lord, the presence of God is more important than anything in this world. हे परमेश्वर, इस संसार में आपकी उपस्थिति अन्य किसी बातों से अधिक महत्वपूर्ण है। More than everything, fill them with your presence, Lord. हे प्रभु, सबसे बढ़कर आप इन्हें अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. The हालेलुया। Lord is blessing you today. आज परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। The heaven will open for you. स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। You will see angels descending and ascending. आप स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते हुए देखोगे। Lord, give your people your visions, O God. हे प्रभु, अपने लोगों को अपने दर्शन को दिखाइए। Speak to them through dreams. स्वप्नों के द्वारा उनसे बात करिए। Let them know the secrets of heaven, O God. हे प्रभु, वे स्वर्ग के भेदों को जानने वाले हों। Make everyone the prophet and prophetess. हर किसी को आप भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्तनी बना दें। Let them also say, how awesome is this place. और वे भी इस बात को कहने पाएं कि यह स्थान कितना ही अद्भुत है। Truly, this is the house of God. निश्चय यह तो परमेश्वर का भवन है। This is the gate of heaven. यह तो स्वर्ग का द्वार है। Truly, the Lord is with me. सचमुच परमेश्वर मेरे साथ हैं। And let them also say that, O God. हे परमेश्वर, उन्हें भी ऐसा कहने दीजिए। Lead them beautifully, Lord. प्रभु जी, अद्भुत तरीके से उनकी अगुवाई करिए। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Make them be seated in heavenly places. उन्हें स्वर्गीय स्थानों में बैठने दीजिए। Let saints of God speak to them, Lord. हे प्रभु, परमेश्वर के संत उनसे बात करें। Let them have open heaven. उनके लिए स्वर्ग खुल जाए। Thank you for blessing your people. हे प्रभु, अपने लोगों को आशीर्वाद देने हेतु आपका धन्यवाद। Let the blessings of Jacob come upon them, Lord. प्रभु जी, याकूब की आशीषें उन पर बरसने पाएं। They may work hard.
वे कड़ा परिश्रम करते होंगे। Lord, every work they do, let it prosper, oh God. प्रभु जी वे जो भी काम करें उसमें वे सफल होने पाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। The blessing is coming upon you. आप पर आशीषें उतर रही हैं। Don't say that you are alone. ऐसा मत कहिए कि आप अकेले हैं। God is coming along with you. परमेश्वर आपके साथ आ रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Help them to cling on to you, Lord. प्रभु इनकी सहायता करिए कि ये आपको थामे रहें। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु for you are going along with them, Lord. कि आप इनके साथ आ रहे हैं। Take away all the weaknesses in their body. इनके शरीर की हर एक दुर्बलताओं को दूर कर दीजिए। Touch and heal them, Lord. प्रभु जी इन्हें छूकर चंगाई दें। Let the throats be healed. इनका गला चंगा हो जाए। Let the eyes be healed. इनकी आंखें चंगी हो जाएं। Lord, take away the headaches, Lord. प्रभु जी इनके सिर के दर्द को आप दूर कर दें। Touch and heal them, Lord. इन्हें स्पर्श करिए और चंगाई दीजिए। Heal their pains, oh God. हे परमेश्वर इनके दर्द को दूर कर दें। Bless their family. इनके परिवार को आशीष दें। Remember them, Lord. प्रभु जी इन्हें याद रखें। Remember them, Lord. इन्हें स्मरण रखें। Remember every member in the family. इनके परिवार के हर एक सदस्य को आप याद रखें। Bless them from generation to generation. इनकी पीढ़ी से पीढ़ी को आप आशीर्वादित करें। Help them also to stand in the gap इनकी सहायता करें प्रभु कि ये संकट में भी दृढ़ता के साथ खड़े रहें and serve you, Lord. और नित्य आपकी सेवा करते रहें। Give them the faithfulness to stand with you, Lord. उन्हें आपके साथ खड़े रहने की निष्ठा प्रदान करें प्रभु। Whoever may come against them, जो कोई भी उनके विरोध में आए let them not bother about, Lord. प्रभु जी ये उनकी परवाह ना करें। Father, you be with them, Lord. हे पिता आप उनके साथ साथ रहें प्रभु। If you are with them, who can come against them? यदि आप उनके साथ रहें तो कौन उनके विरोध में आ सकता है। Nothing of the evil should ever touch them, Lord. हे प्रभु बुराई की कोई भी बात उन्हें कभी ना छूने पाए। Safeguard their family उनके परिवार को आप ही सुरक्षित रखें and prosper them in double measure. और आप उन्हें दुगने रूप से समृद्ध करें। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन।